Great evening, one and all. So let's start our Q&A session with the question of Mr. Omkar. So Omkar, my dear friend, I'm putting you in a spotlight. Go ahead, my dear friend, ask your question. Great evening. Yes, great evening, dear friend. Go ahead. Okay, actually, I wanted to share some experience as well as I want to ask a question on the second half. The Yeah, first experience that we had gone through this public speaking, and I've given the exam last week. I got yeah. the result in this week itself, and I have scored splendidly well. You And got the it was result? the effect, it's combined effect and the power. Yes, within 4 days, you get result now within four Congratulations, four days. man. Amazing. So how is the result? It's great, great. It's great. क्या I बात है got यार. band 7. Okay, awesome. Congratulations. Go ahead. Uh, Now the thing is that let's say we have achieved one of the tasks. Now we have to go beyond that point of time. And what need to do? Yes, we have to put the constant effort. But now the target was there. Let's say for this date I am having this thing or this particular thing I have to achieve within this day. But now the time constraint has gone now. But there is always scope for improvement. Then how Absolutely. can we focus with respect to when there is no time constraint? Got That's it. my concern now. Got it. Got it. आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड. देखो, जिंदगी में इसीलिए एक गोल कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली दूसरा गोल सेट करना चाहिए. और मैं ओमकार सजेस्ट करूंगा, यार ऐसा गोल सेट कर, तू इतना बड़ा गोल सेट करो कि जो अचीव करने के लिए आपको जान लगानी पड़ेगी. सेट अ वेरी बिग गोल. देन वो कांस्टेंट Okay. आपके ऊपर वो एक प्रेशर रहेगा. एंड अनाउंस टू द वर्ल्ड. But you know what is the beautiful part? Announce to your friends, relatives, everyone, this is what I'm going to achieve. And let people call you psycho. वो ओमकार है ना, ओमकार साइको है, एक नंबर का पागल है. Let people call you on your face. Let people call you. तो वो क्या होगा पता है? वहां से They're एनर्जी already बिल्डअप होगी. already calling me. सॉरी. They're already calling me psycho. बहुत अच्छी बात है यार. तो वही एनर्जी है. नाउ यू हैव टू प्रूव. नाउ इट इज योर रोल टू प्रूव योरसेल्फ. You have to put your heart and soul for that. You're going to put your heart and soul for that. Then only magic is going to be there. और इसीलिए जिंदगी में एक टारगेट जैसे ही कंप्लीट होने के लिए आता है, इमीडिएटली सेट अप द नेक्स्ट वन. एंड अलोंग विद दैट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन. हैव अ लॉन्ग टर्म विजन. और लॉन्ग टर्म विजन अगर आपके पास है, देन द कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इज गोइंग टू हैपन. एंड वन मोर टेक्निक आई वुड शेयर इज अ रिचुअल. एक रिचुअल आपकी जिंदगी में आप सेट करो. मतलब गोल हो या ना हो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. Whether I have any goal or not. That's the concern. That's the concern. So Yes, that's the concern. Normally we you need have to have those ritual. rituals. Ritual मैं आपको कहता हूं. See, from my personal experience. From my personal experience. Earlier I was doing one ब्रीदिंग एक्सरसाइज टेक्निक, ब्रह्म विद्या. ब्रह्म विद्या करके एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पैटर्न है. मैंने 2013 में उसको सीखा था. 2013. उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली कुछ भी नहीं किया. कभी किया किया नहीं किया नहीं किया, छोड़ दिया. बीच बीच में करता था, छोड़ देता था. बट जैसे मैंने एक टारगेट मेरी जिंदगी में सेट किया, दैट आई वांट टू बी इन अ टॉप 10 इन द वर्ल्ड. आई वांट टू बी टॉप 10 इन द वर्ल्ड. आई वांट टू शेयर द स्टेज विद टोनी रॉबिन्स. I want to create 1 crore success stories. जब ऐसे बड़े बड़े टारगेट मैंने सेट किए, उसके बाद मैं जरा लाइन पे आ गया और मैं ईमानदारी के साथ रेगुलरली अभी 1 घंटे के लिए वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूं, जो पहले कभी नहीं करता था. So this is what I would suggest to you, my dear friend. Have very big goal, very big goal. This is how you're going to create those rituals. Otherwise वो रिचुअल क्रिएट नहीं होंगे. आपका जब तक व्हाई क्लियर नहीं होता ना, व्हाई मतलब मुझे क्यों करना ही है, तब तक वो ट्रिगर नहीं आएगा, वो जूस नहीं आएगा अंदर से, एनर्जी नहीं आएगी. और जो लोग आपको साइको वगैरह कह रहे हैं, मेरे दोस्त, उनका नाम लिख के रखना.
मिठाई सबसे पहले उसके Yes, yes, घर पे भेजनी है, भूलना मत। सबसे पहले उसके घर पे yes, मिठाई जानी yes. चाहिए। जो लोग साइको कह रहे हैं, प्लीज मेक note of that. Yeah, I hope you got the concept. Yes, yes. Thank you. Great, Omkar. This is an amazing question. Thank you so much. God bless you. So let me go to the next question. And I can see a few questions over here in the chat box. Let me go through that. Yeah, so there's a question. Let me read that. Why has some prayers? Yeah, let me read that. It's a bit long question. Just give me a few seconds. Amazing. This is an amazing question by one of the bright student. इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि ऐसे क्यों होता है कि बहुत बार प्रेयर्स में कोई निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं, तो संकट ये वर्ड क्यों इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल करने की जरूरत की है? या फिर कोई प्रेयर्स में ऐसे होता है कि बुरी चीजों से हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, ऐसे प्रेयर्स में वगैरह क्यों बोलते हैं? देखिए, अफर्मेशन के दो टाइप होते हैं। इट्स अमेजिंग क्वेश्चन। एक अफर्मेशन होता है विच इज प्लेन पॉजिटिव अफर्मेशन, एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ अफर्मेशन जहां पे हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को इकट्ठा लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को इकट्ठा लेते हैं, लेकिन वहां पे पॉजिटिविटी का इंपैक्ट बहुत तगड़ा होता है, ज्यादा होता है। जैसे हनुमान जी को हम लोग संकट मोचन कहते हैं, तो वो केस में संकट के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, हमारा ज्यादा फोकस हनुमान जी के ऊपर है। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, या फिर बुरी चीजों से हमें दूर रखना, हमें हमारे जिंदगी में खुशहाली लाना। सो ज्यादा फोकस पॉजिटिविटी के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे स्तोत्राज होते हैं, मंत्राज होते हैं जहां पे कुछ नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, आई नो दैट, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव वर्ड्स भी आते हैं। इट इज नॉट प्योरली नेगेटिव, it is not purely negative, and the emphasis is more on positive words. I really appreciate your question, my dear friend. You are really an idealistic personality. I know you have the idealistic personality. Amazing question. I really appreciate that. So go ahead, my dear friends, and wow. So how to affirm to change the present situation? देखो, जब तक आप मनस्थिति नहीं बदलते, परिस्थिति नहीं बदलेगी। You need to change your mindset. And if you want to change the situation, I would say just look at it in a different way. अगर वो situation को एक अलग एंगल से आप देखोगे, immediately you will change that situation. यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आपको सृष्टि नजर आएगी. So how you look at your challenges, that is a very important thing. So this is what I can say. This is how you can change it situation very fast. This is option number one. Otherwise, you can start doing some kind of affirmation that ekdam simple affirmation ye hai. Every day, in every way, my life is getting better and better. Every day, in every way, my life is getting better and better. This affirmation you can do. There are so many different kinds of affirmation. जो भी आपका टारगेट है, accordingly you can attach it. अगर आपको किसी चीज का डर लगता है, if you are fearful about something, then you can keep on saying like, I am divinely protected. I am divinely protected. I am divinely protected. And this is how you can develop that positive approach in your life. If you are fearful about maybe about English speaking, then you have to say, I am a great English speaker. I'm a great English speaker. I'm a great English speaker. At the same time, you need to put efforts for that. ऐसा नहीं कि सिर्फ बात करना है. You need to put efforts also. So there are different ways by which you can tackle the situation. If you can be more specific, then I can give you more specific answer. But this is the generalized answer from my side. So let me take the next question. Gaurav, can you please turn on your video if you want to ask me something? Yeah, great. I'm putting in a spotlight, my dear friend. Amazing beard you have. I really appreciate that. Great. So unmute yourself and ask your question. सर बेसिकली मुझे ये जानना था, कभी कोई काम को सेटअप किया रहता है बट मीटिंग को
होने में टाइम लगता है या कम्युनिकेशन होने का गैप आता है, तो राइट उसके लिए मैं कैसे मेरे माइंडसेट को कंट्रोल में रखूं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसको अफर्म तो करते, बट उसको पावरफुल कैसे बनाया जाए कि मीटिंग सेट हो, कम्युनिकेशन इजीली हो और नेगेटिव थॉट्स ना आए उसके वजह से, डील इजीली क्रैक कर पाऊं। राइट। सो देखो यहाँ पे मैं ये कहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर योर डाउट्स। ओके। आपको जो भी इंसान को आपके जिंदगी में अट्रैक्ट करना है, वो फ्रीक्वेंसी पे आपको वाइब्रेट करना जरूरी है। बराबर। अगर आपको किसी अमीर इंसान को अट्रैक्ट करना है जहां से आपको बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है, यू नीड टू गो ऑन दैट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। ओके। डोंट ट्राई टू फाइट विद द सिचुएशन, ट्राई टू रिजॉल्व योरसेल्फ। एक बार आपने खुद को रिजॉल्व कर दिया, देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अमेजिंग पीपल इन लाइफ। जो डिलेज होते हैं, डिलेज आर बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज फ्रीक्वेंसी मैचिंग नहीं हो रही है। देयर इज नॉट इनफ फ्रीक्वेंसी मैचिंग। जस्ट रेज योर वाइब्रेशंस, so automatically you will attract right people in your life. सर उसके लिए क्या करूं, एक थोड़ा सा? So just work hard on yourself. Work hard on yourself. What does it mean? By doing affirmation, visualization, जो भी processes आपको पता है, goals लिखना, gratitude and all, you start working on yourself. और आप देखो, हर एक इंसान को वो कौन से नेगेटिव थॉट्स में उलझा हुआ है उसको पता रहता है। ऑलवेज एवरी ह्यूमन बीइंग नोस कि उसका सबसे बड़ा माइंडसेट का पंगा क्या है। You know that. So try to resolve that. Make sure whole day you are in peak state. Whole day you are very happy, grateful, peak state. यस सर। अब ग्रेटिट्यूड का सहारा लो यार। मतलब ग्रेटिट्यूड जैसा मतलब कंसेप्ट ही नहीं है जिंदगी में। कुछ भी चैलेंज हो जाए, सिर्फ ग्रेटिट्यूड, सिर्फ ग्रेटिट्यूड। जस्ट हैव अ ब्रॉड स्माइल, जस्ट हैव अ ब्रॉड स्माइल। ट्रस्ट मी, जब सुबह में रोज उठता हूं और तब उसके बाद मुझे 3 ग्लासेस पानी पीना होता है, उसके बाद मुझे फिर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होती है 1 घंटे के लिए। यार इतना बोर होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सो जाओ यार, ये क्यों करना ये सब दुनियादारी। समटाइम्स आई फील लाइक दैट, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट गो इन अ ग्रेटिट्यूड मोड। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दैट। सो हमें इस तरह से खुद को हमारे माइंड को एंगेज रखना है हैप्पी चीजों में, पॉजिटिव चीजों में। एंड ग्रेटिट्यूड इज अ सिंपल टूल फॉर दैट। Just try to maintain the gratitude approach, and rest of the things will happen in a miraculous way. Okay, sir. Yeah, great. Amazing question, man. Thank you so much for asking. Thank you, sir. Great. So go ahead, my dear friends, and ask your question. Go ahead and ask your question. Let me check if there are any question in the chat box. Okay, so looks like there is no question in the chat box. Go ahead, my dear friends. You can raise your hand. You can ask your question to me directly, or you can put it in the chat box. Chat box is there for you. You can ask me privately also. अगर आप privately पूछोगे, I will not take your name and no one will ever understand कि आपने ये सवाल पूछा है. But I really want you to clear all your doubts, all your challenges, so that you can move really fast towards your target. I really want you to succeed. So go ahead and ask your question. A lot of people over here, but questions are not coming. Go ahead, ask your question. Then only this session. Okay, so there is one question. I want to know your daily routine. Okay, I guess you last time also you asked the same question. I said I promise that I will tell you my complete routine. चलो अभी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, so I will tell you. See, the moment I get up in the morning, the first thing I say to myself is something positive, something कुछ भी regarding gratitude or something. I try to say like that. Okay? और उसके बाद जब मैं सुबह उठता हूँ, चलो मैं अभी आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करता हूँ. Let me share a very big secret. शायद मैं कभी अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है. Okay, with God's permission, I am sharing it that because no one knows it. देखो जब भी आप सांस लेते हो, whenever you are breathing, you must have noticed. अभी भी आप चेक करो. You must have noticed. You can notice right now. आपका एक nostril powerful है. Check it out. One of your nostril is powerful right now. Maybe left or right, not both.
It can't be 50-50. Always one nostril is stronger. और जो भी nostril आपकी strong होगी, that side is stronger. That side is stronger that point of time. जैसे कि in my case the right nostril is working right now. So मेरी जो right side है वो बहुत अभी dynamic है, strong है. तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना है which of your nostril is strong. मतलब कौन से साइड से आपका ब्रीदिंग स्ट्रॉन्ग वे में चालू है. अगर आपका ब्रीदिंग राइट साइड से स्ट्रॉन्ग चालू है, यू कैन चेक इट इन द मॉर्निंग एज यू गेट अप एंड देन इमीडिएटली यूज दैट सेम हैंड. समझो सुबह आप उठते हो एंड योर राइट नोस्ट्रिल इज गोइंग फास्ट, गोइंग स्ट्रॉन्ग. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेक योर राइट हैंड बिकॉज राइट साइड इज स्ट्रॉन्ग, राइट? टेक योर राइट हैंड एंड रब योर होल बॉडी. Rub your whole body with that because you are energizing yourself. You are energizing yourself. तो वो होने के बाद जब आप बेड से बाहर निकलोगी तब आपका राइट पैर, बिकॉज राइट साइड इज स्ट्रॉन्ग, राइट? सो राइट लेग हैज टू बी फर्स्ट केप्ट ऑन द ग्राउंड. सबसे पहले आपको राइट लेग को ही जमीन के ऊपर रखना है. एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टार्ट योर डे. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टार्ट योर डे. ये एक्चुअली ये शास्त्र है, तो ये शास्त्र का नाम वगैरह उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आई डू नॉट हैव परमिशन टू शेयर ऑल द सीक्रेट्स, बिकॉज ये कोई इंसान गलत तरीके से भी यूज कर सकता है. सो आई बिलीव कि आप सब बहुत जबरदस्त लोग हो एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट इन अ नेगेटिव वे. एंड ऑल्सो द श्रावण मंथ इज गोइंग ऑन, वेरी हॉली मंथ, सो आई फील लाइक टू शेयर विथ यू. सो दिस इज व्हाट आई स्टार्ट माय डे. And after that, I am just see something about gratitude. Thank you so much for this. Thank you so much for that. Blah blah blah. I keep on saying like that. Then I drink 3 glasses of water. गर्म पानी में पीता हूँ. और गर्म पानी जो है, अभी मानसून चालू है इसीलिए मैंने ओवरनाइट मेरे पास एक कॉपर का एक जार है, उसके अंदर मैंने पानी भर के रखा है और मैं सुबह उठने के बाद उसको गर्म करके पीता हूँ. एंड व्हाइल ड्रिंकिंग दैट वाटर आई डोंट डू टाइम पास. व्हाइल ड्रिंकिंग दैट वाटर आई लिसन टू टोनी रॉबिन्स. वो जो 10-15 मिनट है, मैं एक टोनी रॉबिन्स का एक ऑडियो वीडियो है, वो मैं बार बार सुनता हूँ. इट इज रिगार्डिंग बिजनेस इज अ स्पिरिचुअल गेम. बिजनेस इज अ स्पिरिचुअल गेम. एक उनका एक ऑडियो है, मैं आपको सेपरेटली शेयर करूंगा लेटर ऑन. मैंने आई गेस आपको शेयर भी किया है, वो मैं बार बार सुनता हूँ. And after that, I jump into the breathing exercises. So first breathing exercise I do is a priming. Priming is the amazing exercise which I learned from Tony Robbins. तो ये priming कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो Tony Robbins के वेबसाइट के ऊपर priming का एक वीडियो है, you can check it out. और priming के ऊपर कभी फिर से मैं डिटेल में आपको बताऊंगा because it will take a lot of time to explain the complete process, but I will just tell you the small part. So priming है, and after priming I do ब्रह्म विद्या exercise. उसके बाद मैं ब्रह्म विद्या करता हूँ 1 घंटे के लिए, around 45 minutes to 1 hour, and then normal bath and all. और उसके बाद the first thing I eat is the almonds. रात को मैं पानी में almonds भिगो के रखता हूँ और सुबह उठने के बाद उसको कंज्यूम करता हूँ empty stomach. Along with that आंवला I consume. शुगर कोटेड आंवला आता है ना, वो मैं कंज्यूम करता हूँ. अलॉन्ग विद दैट ब्लैक रेजिन्स को भी पानी में भिगो के रखता हूँ, दैट आल्सो आई कंज्यूम. सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माय डे. एंड इन दैट होल प्रोसेस आई एम कंटिन्यूअसली इन ग्रैटिट्यूड. और मे बी चैंटिंग द नेम ऑफ द गॉड और समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट आई फॉलो एंड आई हैव बीन फॉलोइंग इट वेरी रिलीजियसली एंड आई एम गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स. Yeah, definitely I will share that audio video with you of the Tony Robbins, so you can listen to anything. I love that audio, hence I listen to it over and over again. Yeah, I hope it is more than enough. बहुत सारे process है यार, बहुत सारे processes है, so I can't share each and everything right now. It will take a longer time. Okay, so let me go to the next question. I hope I answered your question. Okay, so the question is, please describe the visualization process and how we can concentrate during whole process. First of all, visualization process
आपको ऑलरेडी पता है, रात को सोने से पहले यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी एंड यू आर सपोज्ड टू विजुअलाइज योर एंड रिजल्ट। और वो प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है? देखो कॉन्सेंट्रेशन कब होगा पता है? व्हेन यू आर एब्सोल्युटली मैड अबाउट दैट गोल। वो गोल अचीव करने का एकदम जबरदस्त हंगर अगर आपके अंदर है तो ही वो कॉन्सेंट्रेशन आप डेवलप कर पाओगे। सो प्लीज बी हंग्री फॉर दैट गोल। एंड along with that, देखो स्टार्टिंग के फेज में कॉन्सेंट्रेट करना आसान नहीं रहेगा। At the start to concentrate, because it is a kind of meditation, my dear friend. Visualization is the active meditation. Please note, visualization is an active meditation. कोई मेडिटेशंस कैसे होते हैं? पैसिव होते हैं। पैसिव मतलब हम लोग शांत बैठते हैं और सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं, किसी गॉड के ऊपर, गुरु के ऊपर फोकस करते हैं। दैट इज पैसिव मेडिटेशन। दैट इज ऑल्सो ऑसम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव मेडिटेशन वेयर यू आर यूजिंग योर एनर्जी टू मैनिफेस्ट समथिंग. So it is a kind of meditation and you have to practice it every single day. And I would say, in order to concentrate in a perfect way, you can take the name of the God, Guru, and all the masters. You can remember all the masters. You can take their blessings. And along with that, there is one amazing concept told by B.K. Shivani. B.K. Shivani, इन्होंने बहुत अच्छा एक concept बताया था. बीके शिवानी इन्होंने बताया कि जब भी आप मेडिटेशन करते हो, सो मेडिटेशन करते समय आप सभी से फॉरगिवनेस के लिए रिक्वेस्ट करो. सो आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू ऑल लिविंग पीपल एंड डेड पीपल ऑल्सो. ऑल लिविंग एंड डेड पीपल जिनके साथ आपका कनेक्ट हुआ था कभी ना कभी, वो सबसे आप फॉरगिवनेस मांगो. आस्क फॉर फॉरगिवनेस. और उन्होंने ये भी कहा, आप आपके पिछले जन्म में या फिर जितने भी जन्म हुए हैं उसमें आपने जाने अनजाने में जितने लोगों को हर्ट किया है उनसे भी फॉरगिवनेस मांगो. एंड देन यू स्टार्ट द मेडिटेशन. अमेजिंग यार, अमेजिंग. आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, पिछला जन्म एंड ऑल, बट स्टिल यू नीड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. बिकॉज जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों को हम लोग हर्ट करते हैं, हमें भी पता नहीं चलता. कभी कुछ बोल देते हैं इंटेंशनली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली. अगर वो हमें बद्दुआ भेज रहे हैं, इफ दे आर नॉट हैप्पी, दे आर सेंडिंग सम कर्सेस टुवर्ड्स अस, तो वो केस में वी कांट प्रोग्रेस. हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. एंड हेंस यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड देन यू डू द मेडिटेशन. मे बी यू कैन टेक द नेम ऑफ योर इष्ट दैवत, कुल दैवत. आई होप यू नो दैट. If you know your Kula Devat, Ishta Devat, you can chant their names also at the start, and then you can do the meditation. You can remember, take energy from all masters, and then you can start the meditation. So there are different processes. और सबसे बढ़िया मैं आपको बोलूं, the best thing, take blessings from others. Try to take blessings from others. मतलब दिन भर में कुछ ना कुछ तो ऐसे किसी से बात करो, किसी को मोटिवेट करो जिससे सामने वाला इंसान हमें कुछ दुआ दे. Do something for someone. Let me share you very big concept. अगर आप, I don't know whether you will believe it or not, but I'm going to share. अगर आप जितना भी पैसा कमाते हो, हर महीने अगर आप 10% डोनेट करोगे, you will experience amazing spiritual growth. Trust me, you will experience unbelievable spiritual growth. मतलब overall growth, but spiritual growth you will experience really faster because you have a lot of blessings of the people. You are helping someone. Now you donate wherever you want, but do that. And this is how you can build your concentration while doing visualization, meditation, and achieving your success. This is what I can say. So great, amazing question. Thank you so much for asking this question. So there is a question. Let me go through that. It's a private question, so I can't share that. So let me read it and answer. Okay. So देखिए, अभी आप पूछ रहे हैं कि मुझे मेरे वाइफ के लिए अफर्मेशंस करने हैं, उसका भी ग्रोथ होना चाहिए एंड ऑल. प्लीज अंडरस्टैंड, you can pray for someone 100%, you can visualize for someone 100%, लेकिन अगर वो इंसान अगर वो करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, your prayers and all, everything, visualization is all in vain.
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इंसान ने अगर खुद वो सिस्टम को फॉलो किया, अगर आपके वाइफ ने खुद वो सिस्टम को फॉलो किया तो उनको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेंगे। हाँ, अगर बहुत छोटा बच्चा है एंड ऑल, देन इट इज ओके, देन यू कैन सेंड दोस वाइब्रेशन टू देम एंड ऑल। बट if the adult is there and that adult can follow the system, अगर आप उनको सिखाएंगे then it will be really awesome. You can still send the blessings, लेकिन अगर वो अपोज कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं है, then in that case you can't help someone. कहते हैं ना, मतलब घोड़े को हम लोग पानी की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी पीना है या नहीं वो उसके हाथ में होता है। I mean to say उसके माइंडसेट के ऊपर है। So you can send amazing energies, no doubt about it, but it is up to that person. So I would say she's with you, she's your wife, just talk to her, convince her. You already have the subconscious mind training course with you. You already have that subscription for that course. So ask her to watch all these videos. That's it. This is what I can say. Let me go to the next question. Yeah, so this is a little bit bigger question. Let me go through that. Just give me a few seconds, my dear friends. Yeah, see this question is regarding the fear. मतलब मुझे बार बार ये डर लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है, बिकॉज पहले भी मेरे साथ बुरा हुआ था। पास्ट एंड फ्यूचर आर नॉट इक्वल। आपका जो पास्ट है और फ्यूचर है वो इक्वल नहीं है। हाँ, वो इक्वल हो सकता है इफ यू लिव इन अ पास्ट। पास्ट और फ्यूचर इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार पास्ट में उलझेंगे तो फ्यूचर में वो जरूर होगा, वो जरूर होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट आवर माइंड इज वर्किंग, दिस हाउ द माइंड इज वर्किंग। सो जैसे आपके मन में विचार बार बार आते हैं वैसे ही आपके जिंदगी में होने वाला है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यू जस्ट इंक्रीज योर फेथ, increase your faith. I am divinely protected, I am divinely protected. Keep saying like that. I would say it for thousands of times. आप सांस ले रहे हो ना, with every breathing you go for it. हर एक सांस के साथ वो अफर्मेशन कीजिए, I am divinely protected, I am divinely protected, and use your body language, use your physiology for that. Yes, I am divinely protected, God is with me, God is with me, God is with me. So whenever the negative thought is coming, यार मेरे जिंदगी में कुछ बुरा होगा, God is with me, God is with me, I am divinely protected, I am divinely protected. So this is how you have to kill that negative inner voice. So negative inner voice बार बार pop up हो रहा है ना, you can just kill that with the strong affirmations. Whenever that negative thought is coming, just say opposite of that, just say opposite of that. I am divinely protected, God is with me. Whichever God you believe in, जो भी भगवान में आपको भरोसा है उनका नाम लीजिए, खत्म। You can finish off that energy. एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं। अगर समझो मैं आपके घर पे आता हूं, if I come at your home and if you just neglect me, you just neglect me, आप मुझे completely ignore करते हैं, then I will not come at your home again. Why? Because you are not giving me any respect. लेकिन अगर मैं आपके घर पे आता हूँ, यू एंटरटेन लॉट, यू गिव मी लाइट स्वीट्स एंड ऑल, यू ट्रीट मी वेल, यू टॉक टू मी रियली वेल, देन आई विल कम टू योर होम ऑफन। बहुत ज्यादा टाइम आने की कोशिश करूंगा जब भी आपके एरिया में मैं आऊंगा, बिकॉज वी हैव डेवलप द ग्रेट बॉन्डिंग। उसी तरह से जो भी विचार आपके मन में आते हैं, अगर आप उसको एंटरटेन करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, तो आपकी जिंदगी का वो हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन आपके मन में विचार आते हैं और आप उसको निग्लेक्ट करते हो, उसको इज्जत ही नहीं देते हो, तो विचार क्यों आएंगे? नहीं आएंगे वो विचार, दे विल नेवर कम इन योर माइंड। सो डू नॉट फीड योर नेगेटिव थॉट्स, उसको दाना पानी देना बंद करो, नेगेटिव थॉट्स को दाना पानी देना बंद करो। इंस्टेड ऑफ दैट अफर्म समथिंग पॉजिटिव, एंड इफ यू हैव द फियर, फोकस अपॉन। और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार ये मत सोचो हाउ कैन मैं डर से बाहर कैसे निकलूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर नहीं चाहिए, मुझे डर नहीं चाहिए। जिंदगी भर डरते रहोगे, बिकॉज डर ये वर्ड आप रिपीट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट रिपीट द वर्ड
and ask yourself, how I can be more confident, how I can be more confident, how I can enjoy my life, how I can enjoy my life. Ask this kind of question to yourself. And answer is very simple. Either you can chant the name of the God, or maybe you can be grateful, or you can do some kind of affirmations. You can say success song. So I have given you all the solution. Be very disciplined and follow the system. System follow nahi karoge, nothing will happen. Negative thoughts going to come, and you have to kill them. See, you believe in spirituality a lot. I would say you do Maruti Stotra every single day. जब आपको मतलब घर में अगर कुछ चैलेंज है, I mean to say, अगर menstrual cycles वगैरह किसी के चल रहे हैं, तो that point of time you can't do it. But other days you can do that stotra. You can do the Ganpati Stotra also. Ganpati Stotra, Maruti Stotra. You must do that every single day. This is how you develop the energy. This is how you develop the energy. So create more and more positive energy. I hope you got the answer. Yeah. God bless you for that. You can rock, definitely. See, I used to think negative like hell. But I have overcome that by following the same system. Great, amazing question. So let me go. Okay. So question is, I don't have a single uniform goal as it, still figuring out what it will be. In the case, what should I visualize? A bit confused over here. See, you just visualize, I have got the clarity. I have got the clarity. Visualize that. I am highly successful. People appreciate me. I have achieved grand success in my life. I'm getting many awards, rewards and all. And I am absolutely on the great path. I got the amazing clarity. Visualize that. This is what I did. When I was doing the job in Blue Star Limited, जब मैं job कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में क्या करना है मुझे. You know what I used to do? Before going to sleep, मैं बार-बार सोचता था, I am highly successful. I used to feel that. ये कोई सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता था, मन ही मन बोलता था, लेकिन बहुत खुशी के साथ बोलता था, बहुत एनर्जी के साथ बोलता था. I am highly successful. I am highly successful. I am highly successful. I am highly successful. कहां पे, कैसे, कौन, कुछ भी पता नहीं था दोस्त. मुझे लगता है 1 साल के लिए पागल की तरह मैं बोल रहा था, I am highly successful. I am highly successful. और दिन भर में बीच-बीच में बोलते रहता था. और दिन भर में ये भी बोलता था, I am divinely guided, 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 I am divinely guided. My God. I said it for so many times. And after that, I met my mentor, Mahindra Devdekar. He told me about the fingerprint science and all. I understood my God-gifted potential. I met one amazing astrologer, Nayan Dhotri. He also guided me for my God-gifted potential. I started meeting right people. They helped me realize what is my mission in the life. Magic happened. Same thing can happen with you, my dear friend. I have experienced that. ये कोई bookish knowledge नहीं दे रहा हूँ. I never share anything bookish. Whatever I experience, that only I share. Otherwise, I keep mum. Go for it, my dear friend. Definitely, you will get your purpose of life for sure. So amazing question. Thank you so much. Let me go to the next question. Positive thoughts always demolish to negative thoughts. My example is there. Absolutely. Positive thoughts are very, very important. Wow. So Oppo A5. I don't know who is Oppo A5. Sending some amazing messages, but how can I understand? If you want to share your story, please share that. Please inspire someone. देखो ये क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर आपने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं और जो भी मैं कंसेप्ट्स आपको बता रहा हूं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टोरी शेयर करनी है, you can always share that. Most welcome. ओके विलास जी, अरे यार आप तो मास्टर क्लास हो, आपका तो मुझे यार बहुत बड़ा इंटरव्यू लेना है. सॉरी अभी मैं आपको मौका नहीं दूंगा, बिकॉज अगर आप मैं मौका दूंगा तो आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे. आपके पास तो बहुत बड़ी स्टोरी है. आई नो दैट. आई एम गोइंग टू टेक योर बिग इंटरव्यू. बी रेडी फॉर इट.
चलो मैं आपको विलास जी के बारे में एक किस्सा बताता हूं। इनका एज है मुझे लगता है 58-59, ठीक है। डॉक्टर ने बोला है आपको कोरोना हो चुका है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। इन्होंने मुझे कॉल किया और बोला सर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं, लेकिन बिंदास 7 दिन के अंदर घर पे आऊंगा सर, 7 दिन के अंदर वादा है मेरा। 7 दिन के बाद फोन करते, मैं घर पे आ गया, बोला था ना 7 दिन के बाद घर पे आऊंगा। 59 एज, सोचो। दिस इज कॉल्ड बिलीफ माय डियर फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड बिलीफ। एंड दिस मैन इज डूइंग अमेजिंग बिजनेस, अमेजिंग बिजनेस, एंड ही इज गोइंग टू बी द सीनियर सिटीजन कोच। अभी तक मैंने सीनियर सिटीजन का एक भी कोच नहीं देखा है, और मेरी ये इच्छा है कि यार ये बंदे को अपन को सीनियर सिटीजन का कोच बनाना है, एंड ही इज गोइंग टू बी अमेजिंग बिजनेस। सो विलास जी बी रेडी, आप मुझे आपका टाइम दीजिए, अपॉइंटमेंट दीजिए। आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग miraculously well, amazing। बहुत सारी स्टोरीज है विलास जी की रिगार्डिंग, तो अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो वो खुद उनके मुझसे बताएंगे जरूर एक बार इंटरव्यू का। तो सुबोध जी, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग। जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो सो दैट आई कैन पुट यू इन स्पॉटलाइट। ग्रेट सुबोध जी, वन ऑफ द लीडिंग बॉलीवुड एक्टर। Go ahead, my dear friend. Unmute yourself. Go ahead. Yeah. First of all, great evening to everyone. Yes, great evening, boss. Yeah. Go ahead. Regarding the gratitude, you said that gratitude is really working. So just I also started gratitude. But if you want if you want success in particular field, or if you want to work in particular field, so if you start gratituding the person in that field, but the persons are unknown persons, so will it be work? For example, if I want good work in acting field or a serial maybe, so I started gratituding all the directors, producers, casting directors, and all coordinators. I'm thankful and grateful to them. Wow. So will it be a right process? Chumma, 100%, top of the world. Go ahead, do that. Send blessings. Send blessings to all big producers. Send blessings to them. Yeah. उनको बहुत सारे लोग गाली देते रहते हैं, क्या यार मुझे मौका नहीं दिया, खुद को क्या समझता है, blah blah blah. You don't do like that. You send them lots of blessings. आप उनको blessings भेजो, and at the same time, put heart and soul on yourself. Yes. Work hard on yourself. Take your acting skills at the big level. और आपको वो blessings भेजने हैं सबको। और मैं कहता हूं यार सिर्फ उनको ही क्यों, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको blessings भेजो यार। आपको पता नहीं यार कौन सा आदमी आपको कहां पे लेके जाएगा। You really never know. Yes. You really never know कौन सा आदमी आपको कहां पे लेके जाएगा। ट्रस्ट मी, हमें लगता है कि यार ये आदमी क्या करेगा मेरे लिए, लेकिन आपको पता नहीं वो आदमी की पहचान कहां पे। आपके जिंदगी में मैजिकली लोग कहां से जुड़ेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी कल ही एक इंसान को मैं मिला था, मतलब एक मीटिंग थी हमारी, तो उनके बताते बताते उन्होंने मुझे कहा कि मेरे एक दोस्त है जो यूएस में रहते हैं और उनका कुछ तो मेंटल रिलेटेड कुछ चैलेंज है, तो क्या आप काउंसलिंग करोगे उनकी। गॉट द क्लाइंट फ्रॉम यूएस, from nowhere. Great. This is something miraculous. This is something unbelievable. मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कहां से क्या कनेक्ट होगा यार कुछ नहीं बोल सकते। I would say send blessings to all and especially to the people जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, हेल्प करने वाले, उनको तो ज्यादा ब्लेसिंग्स भेजना जरूरी। Yeah. And one more thing I want to ask regarding the thoughts. You said that everybody knows that you have to eradicate then negative to positive. If you want unwanted images and emotions, then what to do? Again, see, images and emotions are really troubling you, and that is unwanted. So I have to eradicate that. Right. See, I would say, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा ये जो सिस्टम है ना यार, ये यार सुपर कंप्यूटर है।
ये कंप्यूटर का भी बाप है। सोचो ना, हमने उसको कंप्यूटर किसने बनाया? हमने ही बनाया ना। ये कंप्यूटर का भी बाप है। और इसका पंगा ये है कि यार ये भूलता नहीं है। मतलब ये ऐसा सिस्टम है ना यार कि अच्छी चीजों को भूल जाएगा लेकिन बुरी चीजों को पकड़ के रखेगा। ऐसा क्यों होता है पता है? बिकॉज वो बुरी चीजों में इमोशंस बहुत होते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई भी नेगेटिव इमेज को जो आपने देखी है समझो, या फिर किसी भी इमोशन को अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको रिसाइकल बिन में डाल सकते हो। जैसे देखो ना, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर या फिर जब हम कोई फाइल वगैरह एक्सेस करते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें पसंद नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं? राइट क्लिक करके उसे डिलीट कर देते हैं। राइट, वी जस्ट डिलीट दैट। वो डिलीट होने के बाद हमारे आंखों को तो नहीं दिखता लेकिन रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है। राइट और रॉन्ग? राइट। अभी हमारा जो लैपटॉप है वहां से हम लोग रिसाइकल बिन से भी उसको उड़ा सकते हैं, ये बात अलग है, लेकिन हमारे सिस्टम से नहीं उड़ा सकते। हमारे सिस्टम से ये एक्सेप्ट कर लो। Yes, yes. All the memories will be there. हाँ, वो तो रहेगा, लेकिन मैं क्या कहता हूं, उसका जो पावर है ना, वो पावर बहुत कम हो जाएगा। मतलब जो इंटेंसिटी है, जो ट्रिगर है, हाँ, वो ट्रिगर मोमेंट उसका बहुत कम हो जाएगा। कब कम होगा? जब आप उसको रिसाइकल बिन में डालोगे और उसको एंटरटेन करना छोड़ दोगे, उसके ऊपर आप हंसना शुरू करोगे, कैजुअली उसके तरफ देखोगे, या फिर वो जो दर्द है जो भी है उसको पावर में कन्वर्ट करोगे। मैंने आपको बताया है, ये फिर से आपको बताता हूं। एक इंसान था मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था 2019 में, मुझे सीधा व्हाट्सएप पे और मैसेज भेज दिया, अबे साले समीर तेरी औकात नहीं है, कैसे बकवास वीडियो बना रहे, बंद करिए वीडियो बनाना, ये कॉमन वीडियोस है, सबको पता है। तू ये जन्म में ट्रेनर नहीं बन सकता, शायद अगले जन्म में बना तो बना। तो सोचो, अगर किसी ने आपको इस तरह से क्रिटिसाइज किया तो कैसे मैं भूलूं यार? हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? सो ये फॉरगेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, वो पेन को पावर में कन्वर्ट करना है। मतलब जो इमोशंस हमें दर्द दे रहे हैं ना, वही इमोशंस हमें इंपावर करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? I will give you one more example over here of Glenn McGrath. Glenn McGrath पता है ना, ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर। सो ऑस्ट्रेलिया का जो फास्ट बॉलर था ग्लेन मैकग्राथ, उसकी वाइफ की डेथ ब्रेस्ट कैंसर से हुई। सोचो सर, उसके पास यार कितना पैसा है, कितनी पहचान है, तो भी बचा नहीं पाए। अभी सोचो यार कि आप इतने जो करीब आपके इंसान है, वो अगर जाता है तो कैसे उसको भूल सकते हो? सोचो उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो वो बंदे ने क्या किया, मैकग्राथ फाउंडेशन शुरू किया। मैकग्राथ फाउंडेशन, उसको पहले दर्द होता होगा बहुत बार, क्या यार बीबी चली गई, बीबी चली गई, क्या जिंदगी में, क्या है जिंदगी में, क्या है जिंदगी में। लेकिन उसने क्या किया, वो पेन को पावर में कन्वर्ट किया। मैकग्राथ फाउंडेशन शुरू करके आज हजारों लेडीज का मतलब ऑपरेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए बहुत कुछ सपोर्ट किया है उसने। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर। हैव यू गॉट द कांसेप्ट? यस यस। दोस्त, भूलने की कोशिश करोगे तो बार बार याद करोगे। मुझे भूलना है, मुझे भूलना है, मुझे भूलना है, मुझे हाथी को नहीं देखना है, मुझे हाथी को नहीं देखना है, वो साला हाथी ही दिखते रहेगा। एक्सेप्ट करो ना यार, हाथी आया तो आया, हाथी के साथ गाना गाओ ना, वो हाथी मेरे साथी वाला। एंजॉय यार, ट्राई टू कन्वर्ट दैट पेन इनटू पावर। मेरी भी जिंदगी में बहुत खतरनाक हादसे हुए हैं। अभी यहाँ पे ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं ओपनली बता नहीं सकता। मतलब कोई कोई लोग तो ऐसे रहते कि उनके लिए हम लोग जान डाल देते अपनी, और वही लोग हमें चोर समझते, मुंह पे बोलते साला तू चोर है, मुंह पे बोलते यार। उनके लिए हम लोग हमारी जान डालते हैं, उनकी जिंदगी में मिरेकल्स होते हैं, और वही लोग बोलते तू चोर है। कैसे लगता होगा सोचो। बट आई ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। I always convert that pain into power. Remember this statement, pain into power, pain into power. You can convert sometimes pain into product also. ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उनका जो दर्द है ना, उसने उससे प्रोडक्ट बनाया है। ओयो रूम्स पता है ना आपको? ओयो रूम्स, रितेश अग्रवाल, उसके जिंदगी का जो दर्द था, होटल्स अच्छे नहीं थे, उसने उसका प्रोडक्ट बना दिया ओयो। करोड़ों छाप रहा है यार, पेन को उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया।
एयरबीएनबी नाम सुना है ना, एयरबीएनबी। एयरबीएनबी का जो बंदा था उसके पास साला रेंट देने के लिए पैसा नहीं था, उसने उसका पेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसका रूम ही उसने रेंट पे दे दिया, रेंटेड रूम रेंट पे दे दिया। यार कहां कहां से कुछ भी निकल सकता है, सिर्फ एक जबरदस्त माइंडसेट रखो और भूलने की कोशिश मत करो, एक्सेप्ट करो ये चीज हुई है, इट हैज हैपन। देखो आप एक्सेप्ट करोगे ना सुबोध भाई, तो वो जो दर्द है वो रिसाइकल बिन में चले जाएगा, आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। गॉट इट? Yes, yes. ग्रेट Thank you. ग्रेट Thank you सुबोध so जी, much. आई वांट टू सी यू एट वेरी बिग लेवल यार, I want to see you at very big level. You have such a great platform. आपने बहुत सीरियल्स में काम किया है, मूवीज में काम किया है, you have got many awards. एकदम जबरदस्त प्लेटफॉर्म रेडी है यार. And let me tell you, 2022 totally 6. 2022 totally 6. It is the year of Shukra. Shukra is all about glamour, and you're going to get all Bollywood and all everywhere great opportunities. So be ready for that. Few months are there. Few months are remaining. Put your heart and soul and emerge as a champion. God bless you, my dear friend. Yes, yes. Thank you so much. Thank you so much. Great. Yeah. Amazing question. Thank you so much, Subodh ji, for asking this question. So let me go to the next question. Yes, I'm answering that. Direct message, I got it. Just give me some time. Yeah, Gaurav ji, you want to share something? Definitely, I will give you opportunity. Just give me few seconds. Let me answer this question and then I will unmute you. Be ready. Yeah. So the question is, so what if you feel guilty even if it's not your fault in a fight? How to overcome the guilt of others' mistake, or how to have the self-respect and self-esteem? देखो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि गलती सामने वाला इंसान करता है, लेकिन वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कैसा है करता है, ऐसी स्टोरी बनाता है जिससे हमें लगता है कि यार शायद मैंने ही कुछ किया है, शायद मैंने ही कुछ किया है। तो देखो आपने किया या नहीं किया, यू नो इट वेरी वेल। कभी कभी डायरेक्टली हो जाता है, कभी कभी इनडायरेक्टली हो जाता है, कुछ भी गलती है, कोई भी हादसा है, देन इन दैट केस फॉरगिव योरसेल्फ। यू आर अ ह्यूमन बीइंग यार, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। और भगवान से भी कभी कभी गलतियां हो सकती है, तो हम लोग तो इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग। सो एक्सेप्ट दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। इन केस यू हैव डन अ मिस्टेक, एक्सेप्ट दैट। अगर नहीं किया है आपने मिस्टेक, देन दिस चिल। बहुत सारे लोग आपको आपको बहुत कुछ बोलेंगे। You know, some people straight away call me, you're a chore. I can't help it. It is your challenge, boss. It is your challenge. कभी कभी हम लोग किसी को हेल्प कर देते हैं और वही कुछ गलत वे से हमारी तरफ देखता है, हम कुछ नहीं कर सकते वो केस में। So do not have the guilt for that. In case you have done mistake, accept it and just bounce back. Convert your pain into power. लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है, जाने अनजाने में की है, या फिर की ही नहीं है गलती, then just chill, have a smile on your face. Because कोई लोग कैसे रहते हैं कि वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, मतलब गलती खुद करते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो किसी के सर के ऊपर वो डाल देते हैं, खुद का कचरा किसी के ऊपर डाल देते हैं, वो ब्लेम गेम में फंसते हैं। तो वो केस में आपको उनको माफ करना है, टेक ए चिल पिल एंड यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ। And this is how you can maintain your self-esteem. Because देखो यार, आप जो भी गलती करते हो नहीं करते हो, भगवान को तो पता है ना। एट द एंड ऑफ द डे गॉड नोज इट कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, खत्म। एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट, एवरीथिंग इज ऑसम। दुनिया कुछ भी सोचने दे, सोचने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यू जस्ट टेक अ चिल पिल, गॉड नोज इट व्हाट यू हैव डन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। That is more important. Instead of proving it to someone, there is no need to prove to someone. As long as you're true to your heart and God knows it. Be happy. Great. So Gaurav ji, be ready. I'm putting you in a spotlight. Kindly turn on your video. Great. Let me put you in the spotlight. Yeah, go ahead, my dear friend. Share. Hello, sir. जैसे कि मोस्टली अपने को ये चालू करके 1 साल हुआ जब से मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। डे बाय डे मेरे अफर्मेशंस, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड चेंज हुए।
जैसे मैंने बुक रीडिंग का स्टार्ट किया था, उसी टाइम पे भी मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं, मैं आपको 3-4 बार बोला, बट मैंने वो थॉट प्रोसेस चेंज किया, मुझे बुक पढ़ना पसंद है। आज भी मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ग्रुप में हो, ग्रेटिट्यूड, और मेरे से भी रह जाता है कभी कभी विजुअलाइजेशन ग्रेटिट्यूड, तो मैं रोज लिखता हूँ, डिले होता है, बट इसका मैजिक है। किसी को लगता है मैजिक नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ मैजिक है इसमें। 110% कनेक्टिविटी मेरा हुआ है सब जगह, सब लोगों से मिल रहा हूँ, और मेरे को बुक रीडिंग में अभी इतना मजा आ रहा है। मैंने 1-2 पैराग्राफ भी शेयर किए हैं, और मेरे स्टेटस भी वैसे ही रहते हैं। और जो बोलते हैं ना, कनेक्टिविटी है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ता है, और लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनता है। ग्रेट गौरव जी। आज बुक रीडिंग के लिए मैंने आपको बोला सर मजा नहीं आ रहा है, या ये नहीं है वो नहीं है, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि बुक रीडिंग के लिए मुझे मजा आ रहा है। दो बुक्स जो आपने चालू किए, उसमें से एक अभी जो रिसेंटली पढ़ रहे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें मैंने एक पैराग्राफ लाइफ मास्टरी ग्रुप पे फेसबुक पे शेयर किया था, इम्प्रूविंग अ पावर मेमोरी। तो वो जो पैराग्राफ पढ़ा ना, उसमें से मैंने सोचा कि मेरा मेमोरी इंप्रूव हो रहा है, मेरा मेमोरी इंप्रूव हो रहा है। और जैसे आपने आज मेरे को सजेशंस दिए फ्रीक्वेंसी पे, आज का मेरा स्टेटस भी, व्हाट्सएप स्टेटस भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही है। ग्रेट। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो, अगर थॉट प्रोसेस है। जैसे मैंने कनेक्ट हुआ था आपसे, वो टाइम पे मुझे नहीं मालूम था, मैं तो देवलेकर से जी से भी कनेक्ट हुआ था, बट टाइम पीरियड जो रहता है वो कभी चेंज होता है, पता नहीं चलता। अगर थॉट प्रोसेस सही रही, कहीं पे भी पहुंच सकते, कभी भी पहुंच सकते हैं, और ऑटोमेटिकली डोर्स ओपन होते हैं, ऑटोमेटिकली डोर्स ओपन हो रहे हैं। परफेक्ट। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ग्रुप में, लाइफ मिस्ट्री में मेरे साथ 3-4 जन एक्टिव है, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन एक चालू कर देवे। रिक्वेस्ट है, उसकी रिजल्ट्स दिखेंगे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, और 100% रिक्वेस्ट है कि 40-50 जने उसमें से। जब आपका कार के साथ आप फोटो डालोगे ना, तब दुनिया ग्रेटिट्यूड लिखना ऑटोमेटिक शुरू कर देगी। सर मैं तो चाहता हूँ कि मैं ये वो ग्रुप में डालना चाहता हूँ कि 4 जन है तो 4 जन में से और 10 जन हो जाए कि डेली एक्टिव हो। देखो कैसे है, मराठी में उसे कहते हैं चमत्कार तिकडे नमस्कार। जब तक चमत्कार नहीं होगा तब तक नमस्कार कोई नहीं करेगा। देखो अभी बहुत सारे लोग मुझे भी टाइम पास में लेते हैं, ग्रांटेड पे लेते हैं, कभी कभी सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, या फिर कनेक्टिविटी में नहीं रहते हैं। सो जब मैं एक लेवल पे जाऊंगा, देन दे विल रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स। यार बंदा इतने नजदीक था, इतना फोन करके बताता था, समझाता था, लेकिन मैंने टाइम पास पे लिया। यार मुझे करना चाहिए था। सर पिछले मैं 7:30 बजे से आज इवनिंग से मैं ऑनलाइन सेशन ही अटेंड कर रहा हूँ, और मैं फ्री रहता हूँ तो यूट्यूब पे रहता हूँ, और मेरे अफर्मेशन ये वो। मैं सलून में बैठा था आज ही, तो सलून में भी मेरे अफर्मेशन चालू थे, मुझे कुछ काम नहीं था। राइट। तो मुझे कुछ ना कुछ नहीं है, चलो मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं इनसे मिल रहा हूँ। जैसे आपने बोला ना कि आपका फ्रीक्वेंसी रिचार्ज करो, तो मैं उस चीज पे लगा हुआ ही हूँ, और मेरा फ्रीक्वेंसी भी वो लेवल पे पहुंच जाएगा विद इन अ वीक। और मेरे सब मीटिंग्स और जो टाइम पीरियड के हिसाब से वो कनेक्ट हो गए। और मैंने आपको बोला था कि मैं 3 डील क्लोज करूंगा, तो 110% उससे ज्यादा होगा, पाइपलाइन में है मेरे। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अनम्यूट करें और सब अपने एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग सर या आप सबको अनम्यूट कर दे 1 सेकंड के लिए, और सब अपना एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे दे। ओके, आई एम नॉट श्योर कि अभी लोग कहाँ पे हैं एंड हाउ मच दे आर नहीं मतलब कंफर्टेबल। यहाँ पे जो भी 18 जन है या 15 जन है, ओके, कुछ एनर्जी चेंज होगी, कुछ ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे, मुझे मिलेंगे, आपको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। सो हाउ यू वांट टू डू इट एक्चुअली, मतलब क्या करना चाहिए लोगों को? कैन यू कुछ नहीं, सिर्फ गॉड ब्लेस बोलना है। ओके ओके ठीक है। सो अभी मैं आपको, अभी सेशन भी यहाँ पे खत्म होने आ रहा है। ओके सो मैं अभी सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अनम्यूट कर देता हूं सबको। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू हैव टू से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मतलब गॉड ब्लेस यू बोलते रहो। जस्ट कीप ऑन सेइंग गॉड ब्लेस यू। Yeah, God bless you, God bless you, God bless you. Yeah. Just wait. Let me unmute everyone. Let me go for that. Yeah. Okay. Yes, my dear friends, you can unmute yourself right now. Unmute yourself.
God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless friend. you. God bless you. God bless you. Keep on saying God bless you. God bless you. God bless you. God bless you and give you divine success. God bless you. God bless you. Great, God great. bless you. God God bless bless you. you, everyone. God God bless bless you, you. everyone. God God bless bless you, everyone. God bless you, everyone. God bless you, everyone. God bless you, you. everyone. Everyone, God Great, bless great, you. great. God Thank you bless so you. much. God bless you. God bless you. Thank God you bless so you, much. everyone. Thank you so much. God bless you. So, yeah, thank you so much, everyone. And big round of applause for all. Big round of applause for all. Big round of applause for all. Amazing energy. Thank you so much, Gaurav ji. Thank you so much. And keep doing that. Trust me, this is a very beautiful mantra. God bless you. जो भी आपको मिले, जहां पे भी मिले, God bless you बोलते रहो. उसको blessing भेजते भेजते आप कितने blessed हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा. This is really amazing tool. Keep on saying God bless you to all. Yeah. So thank you so much, Gaurav ji, for sharing this amazing insight. Yeah. So looks like there are no questions and it is almost done. It is almost 10 o'clock over here. So thank you so much. Thank you so much, everyone, for participating and asking amazing questions. So that's it from my side today. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये सेशन जो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करता हूं, शेयर विथ मोर एंड मोर पीपल. लेट मोर एंड मोर पीपल गो थ्रू दिस ट्रेनिंग, अटेंड दिस सेशन, वॉच दोज वीडियोस. वो आपको कितनी दुआ देंगे आपको पता नहीं है. आपको पता नहीं है कि आपका कोई दोस्त रिलेटिव कितने दर्द से गुजर रहा है. यू रियली डोंट नो. मे बी ये वीडियो उसको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा. सो इट्स अ ग्रेट वे टू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स. दिस अ ग्रेट वे टू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. Not everyone is going to watch this, लेकिन जिसका भी टाइम रहेगा वो ओपन करेगा, देखेगा, उसको बहुत कुछ मिलेगा इसमें. So thank you so much, everyone. God bless you. Enjoy and take care. Keep rocking. Keep rocking. Take care.